Hello dear friends, our today topic is the two phases of nucleus and occurrence and importance of nucleus and the number of nucleus, shape of nucleus, size of nucleus, chemical composition, gross structure of a nucleus and function of a nucleus. So start करते हैं जी. The two phases of nucleus, each nucleus pass through two phases. जो nucleus है वो two phases पास करता है, the interphase and mitotic phase. जो interphase है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो chromosome are not visible, chromosomes are not visible, various other components take place and the synthesis of RNA. RNA ਦੀ synthesis ਹੁੰਦੀ है but chromosome are not visible in this phase. This phase is also called resting phase. So next है जी second phase, the mitotic phase. Mitotic phase, it is the period of division leading to the formation of two daughter nuclei. जो two daughter nuclei ने वो बनते ने mitotic phase ਦੇ ਵਿੱਚ. So next है occurrence and importance. जो nucleus है, न्यूक्लियस एक की है कंट्रोलर ऑफ आ सैलूलर एक्टिविटी, जो कंट्रोल करता है सैल की एक्टिविटी नू और देयर फॉर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सैल. सो ये ऑल यूकैरियोटिक सैल्स दे विच मिलता है. डी सैल डिप्राइव्ड ऑफ न्यूक्लियाई फेल टू डिवाइडेड एंड डिफरेंशिएट. सैल डिवीजन टेक प्लेस ओनली इन दो सैल विच पोजेसेस न्यूक्लियाई. सैल डिवीजन भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. There are so many cells in the plant and animal kingdom which do not possess nuclei at mature stage. Mature stage ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, but most of them had nuclei in young condition. But young condition ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਜਾਂਦਾ. For example, the young red blood corpuscle of mammal have nuclei but they lost them at maturity and survive for few months only. So next है जी number. Generally there is single nucleus in each cell. हर एक सेल दे विच की है, single nucleus हुंदा है. Such cells are termed as uninucleate. जिन्हां दे विच जिन्हां दे विच की है एक न्यूक्लियस हुंदा उहनूं आपां uninucleate कहने आ, और जिन्हां दे विच दो न्यूक्लियस हुंदे आ उन्हां नूं आपां की कहने आ, बाईन्यूक्लिएट. बाईन्यूक्लिएट एंड यूनिन्यूक्लिएट. यूनिन्यूक्लिएट किहड़े होणगे, जिन्हां दे विच सिर्फ एक न्यूक्लियस होऊगा, और जो बाईन्यूक्लिएट होणगे उन्हां दे विच किन्ने न्यूक्लियस होणगे, टू न्यूक्लियस होणगे. द सेकेंडरी माइसीलियम ऑफ द मेंबर्स ऑफ बेसिडियम माइकोटिना, एगैरिकस, पैक्सीनिया, ऑस्ट्रीलोगस, जो आप बॉटनी दे विच पढ़े आ फस्ट समैसटर दे विच, उन्हां दे विच भी एक ही बाई न्यूक्लियस है. ठीक है, उन्हां दे विच की है, दो न्यूक्लियस है इन ईच सैल. हर एक सैल दे विच किन्ने न्यूक्लियस ने, दो न्यूक्लियस ने माइसीलियम दे विच. सम सेल्स ऑफ लीवर और टैपलेट सेल ऑफ दी सम मैंबर्स ऑफ यूप्रोबाइसिस आर आल्सो बाईन्यूक्लिएट. दी यूनीसैलुलर साइलेट प्रोटो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम्पल है. जो यूनीसैलुलर ਦੀ एग्जाम्पल है वो की है, पैरामीशियम. और नैक्सट स्टेज है जी मल्टी न्यूक्लिएट. मल्टी न्यूक्लिएट मतलब मोर न्यूक्लियस, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मोर न्यूक्लियस ਹੁੰਦੇ ਆ. सम सेल्स हैव एंडोस्पर्म ऑफ सीड आर मल्टी न्यूक्लिएट. The multinucleate condition may be formed by cell fission or by repeated nuclear division. ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਏਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. और when the cell become multinucleate by cell fission, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਨੇਸਿਟੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, मतलब. एंड नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम. The repeated nuclear division with corresponding cytoplasmic division is called plasmodium. So next है जी shape of nucleus. जो nucleus की shape है
द शेप ऑफ इंटरफेस जो अपने कोल इंटरफेस हुंदा तां जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल हुंदा बट इट मे बी फ्यूजीफॉर्म इलैप्टिक फ्लैटेड और इरेगुलर इहदी शेप हुंदी है द शेप ऑफ न्यूक्लियस जनरली डिपेंड अपॉन द शेप डिवेलपमेंट स्टेजेस एंड फंक्शन ऑफ द सेल जो सैल का फंक्शन है और डिवेलपमेंट है उस ते शेप है जो न्यूक्लियस की डिपेंड करती है इट इज़ ऑलमोस्ट स्फीरिकल जनरली जो है न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल ही होंदा है एंड लोकेटेड सेंटर दे विच की है प्रेजेंट होंदा है और इहदी शेप अपने कोले की है अव्यूल शेप होंदी है फ्लैट होंदी है और इरेगुलर होंदी है इन मैच्योर एंड फुली डिफरेंशिएटेड सेल इट मे बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दी सेंट्रल फिजन सेंट्रल पोजीशन यदि जो पोजीशन है वो सेंटर च होंदी है वेल ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ बिग सेंट्रल वैक्यूल तां जो यदि शेप है ये सेंट्रल जी पोजीशन है वो डिस्प्लेस हो जाती है ड्यू टू दी इनलार्जमेंट ऑफ सेंट्रल वैक्यूल जनरली तो जो न्यूक्लियस है वो सेंटर दे विच हुंदा बट जो इनलार्जमेंट होने लग जाती है सेंट्रल वैक्यूल की तो जो ये पोजीशन है वो चेंज हो जाती है ठीक है सो नैक्सट आप गल करते हैं साइज ऑफ अ न्यूक्लियस द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली द साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरीज फ्रॉम 5 to 25 mm in diameter and it depends upon the following एक ही है इन्हें जो इसका साइज है वो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स से डिपेंड करता है और इसका साइज जो है 5 to 25 डायामीटर का होंदा है ठीक है सो ये फॉर्मूला है नैक्सट है अपने कोल कैमिकल कंपोजिशन दे विच क्या कैमिकल इज न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ अबाउट 80% ये प्रोटीन होंगी है और 12% DNA है 5% RNA है एंड 3% लिपिड्स है ये कैमिकल कंपोजिशन ये है द प्रोटीन अक्कर एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स और एज कॉन्स्टेंट ऑफ सर्वरल इंजाइम बहुत सारे इंजाइम्स होंगे ने इस और मिनरल कैल्शियम ठीक है पोटाशियम मैगनीशियम फॉस्फोरस जो है वो कैमिकल कंपोजिशन दे विच आउंदा है सो नैक्सट गल करते हैं जी ग्रॉस स्ट्रक्चर ईच न्यूक्लियस इज बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेन इनवेलोप और कायरोथिका विद इन द इनवेलोप इज अ क्लियर फ्लूइड सबस्टांस जो ये ग्रॉस स्ट्रक्चर की है एक है डबल मैम्ब्रेन है ठीक है सो डबल मैम्ब्रेन इनवेलोप नूं आपां कैरोथिका कह दिंदे आ विद द इनवेलोप इज क्लीयर फ्लूइड सबस्टांस एक ही आ एक फ्लूइड सबस्टांस आ ठीक है ये और न्यूक्लियर सैप है इन विच न्यूक्लियर सल्यूट्स आर डिजॉल्वड अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन कंटेंट फाइबर कॉल्ड न्यूक्लियर मैट्रिक्स किनू कहांगे जिहदे विच क्या प्रोटीन कंटेंट होगा फाइबर्स होणगियां remain suspended in the nuclear sap. The nuclear sap also contain fine intermix with the nucleoprotein filaments collectively referred to as chromatin. Chromatin किनू कहांगे जदों कि आ इंटरमिक्स हो जूगी न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट्स दे नाल तां उदों आपां इहनू कहांगे chromatin and one or more reduced bodies called nuclei. Singular nucleus. So next है अपने कोल this is the structure of nucleus. We can see that here is a nucleus, nucleoplasm और जो है थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर्स ने इन्हों आपां क्रोमैटिन थ्रैड्स कहने आ ठीक है जो इस दे विचाले अपने कोल गैप बन रहा उन्होंने आपां पोर कहने पोर इन न्यूक्लियर इनवेलोप और जो आ दो मैम्ब्रेन ने ठीक है एक फर्स्ट मैम्ब्रेन एंड सैकेंड मैम्ब्रेन ठीक है सो जो अपनी सैकेंड मैम्ब्रेन है उन्होंने जो ये नाल जोड़ता है उन्होंने आपां पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहने ठीक है ये अपनी इनर मैम्ब्रेन है और आउटर मैम्ब्रेन है जो आउटर मैम्ब्रेन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ अटैचड होंगे ने राइबोसोम इन्हों आप राइबोसोम कहने ठीक है अरियार है और पोर न्यूक्लियस भी हो गया और क्रोमैटिन की है अपने कोल थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस दे विच सो इनू आप कहने न्यूक्लियस फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस
This is a very important question. Function of nucleus. Nucleus is an essential and integral part of eukaryotic cells. Eukaryotic cells ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾर्ट है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ही है, ये की है, एक कंट्रोल सेंटर है, ठीक है ना, यूकैरियोटिक सैल्स का। सो फर्स्ट पॉइंट है अपने को न्यूक्लियस कंटेन हैरीडिटी मटीरियल नू कंटेन करदा, इकट्ठा करदा है इन फॉर्म ऑफ जीन लोकेटेड इन क्रोमोसोम दे विच रखदा है उहनू। देयरफॉर इट कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ करैक्टर्स नू की करदा है, कंट्रोल करदा है। ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, जो ग्रोथ के लिए आपां नू इन्फॉर्मेशन चाहिए होंदी है जेनेटिक, वो भी आपां नू इहदे तो ही रिक्वायर्ड होंदी है, ठीक है। डिवेलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर लोकेटेड इन दी क्रोमैटिन, जो डिवेलपमेंट है वो क्रोमैटिन दे विच लोकेटेड होंदी है। द न्यूक्लियस कंट्रोल द सैलूलर मैटाबॉलिज्म नू कंट्रोल करता है। अदर एक्टिविटीज़ थ्रू द सिंथेसिस ऑफ RNA, mRNA, RNA एंड tRNA, द वेरियस टाइप्स ऑफ RNA हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। न्यूक्लियस इज द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, जो न्यूक्लियस के उपर आप देखे सी कि राइबोसोम्स ने लगे हुए ने, ठीक है। एक ही ऐसी साइट हैगी राइबोसोम की न्यूक्लियस के उपर। सैल डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन एंड वेरीएशन आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, जो वेरीएशन आती है वो भी अपने न्यूक्लियस के कारण ही आती है, ठीक है। सैल की जो डिवीजन होंगी है वो भी न्यूक्लियस के कारण ही होंगी है, एंड रिप्रोडक्शन एंड वेरीएशन भी अपने को न्यूक्लियस के द्वारा ही होंगी है। सो इट इज़ अ वेरी प्रोमीनेंट ऑर्गेनल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर इट।